વેલકમ બેક. સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો ફરી એકવાર વાત અંબાજીની કરીએ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત છે અંબાજીના ચીખલીમાં. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંવાદ કરી રહ્યા છે. કાચા મકાનમાં રહેતા હતા. કાચા મકાનમાં હતા, હવે પાકા મકાનમાં આવી ગયા. હા, હવે પાકા મકાનમાં આવી ગયા. છોકરાઓને ભણાવો છો? હા, છોકરાઓ ભણે છે. એક ભણે છે અને બે છોકરાઓને ભણવાની સુવિધા વધી જશે. હા હા સાહેબ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજુબાજુ વાળા ઘણા કહેતા હશે કે તમે બધું મકાન બનાવ્યું, અમારું શું એવું કે છે લોકો? કે તો ખરા ને, કેસા સાહેબ, તમારું ઘર સારું થઈ ગયું. એમને કહેજો મોદી સાહેબે નક્કી કર્યું છે જેમના આજુબાજુ છે ને એ બનાવવાનો છું. હા કહીશ, હા કહીશ સાહેબ. તમારો આભાર સાહેબ. ચાલો, તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મહેણા વાળા તો આનંદ આનંદ આજે આનંદ આનંદ આવી ગયો સાહેબ બધાને. ગ્રામીણ વિસ્તારથી હવે શહેરી વિસ્તાર તરફ જઈએ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પણ આજે આવાસની ઉત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે. નમસ્તે जी नमस्कार કોણ બોલે છે? जी मेरा नाम पुष्पाबेन है. જરા તમારા વિશે પરિચય આપો અને તમને મકાનની કેવી સુવિધા મળી છે કહો. મારો હું પહેલા છનાજીના છાપરા સેવા વિસ્તારમાં રહેતી હતી અને અત્યારે મને એક જગ્યાએ પ્રધાનમંત્રી પુનર્વસન યોજના અંતર્ગત મને મકાન મળેલ છે ત્યાં. અને પહેલા કરતા મને જે મકાન મળ્યું છે એ અમે કોઈ દિવસ સપનામાં નહોતું વિચાર્યું કે આવું મકાન અમને મળશે. વાહ, મકાન સંતોષકારક છે તમારા માટે? ખૂબ જ સંતોષકારક છે. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે જે છોકરાઓને ભણવાનું એક અંદરથી એમને લાગતું હતું કે અમે લોકો કશું કરી નહીં શકીએ, આ જે વાતાવરણ છોકરાઓને મળ્યું છે એ જગ્યાએ એના બદલ ઘણું બધું જે બદલાવ આવ્યા છે પબ્લિકની અંદર. હવે છોકરાઓ ભણવાનું પણ સારું કરે છે અને એમની રહેણીકરણી પણ બદલાઈ ગઈ છે. જે સોસાયટીમાં રહેતા લોકો હોય એ રીતે બિહેવિયર એ લોકોનું ચેન્જ થઈ ગયું છે હવે. અને કોઈના પણ પાસે જયારે એ લોકો પહેલા જતા તો એમને આમ બીક લાગતી હતી કે ચાલી વાળા છીએ કે છાપરા વાળા છીએ, આવું કહેશું તો કોઈ આપણા ઘરે નહીં આવે, આપણને કોઈ બોલાવશે નહીં, આપણને સારી જગ્યા જવા નહીં મળે. તો એ લોકો થોડું ઘણી જગ્યા ખોટું પણ બોલતા હતા. પણ હવે એ લોકો બધાની સામે આમ તમે બેન એટલું સરસ ભાષણ કરો છો, હવે આ ભાજપ વાળા તમને ચૂંટણી લડાઈ દેશે. ના ના ચાલો આગળ. ચલો હવે જઈએ સ્માર્ટ સિટી સુરત ખાતે. સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પણ લાભાર્થીઓ એકત્રિત થયા છે અને અલકાબેન આપની સાથે વાત કરવા માટે ઉત્સુક છે. અલકાબેન નમસ્તે. નમસ્તે. આદરણીય અલકાબેન બતાવો તમને કેવી રીતે લાભ મળ્યો બધો? प्रधानमंत्री आवास योजना હા, ने मकान મળ્યું છે. સરસ મકાન મળી ગયું છે. हाँ सर, बहुत આ अच्छा. બધું નવી ટેકનોલોજી થી બનાવ્યું છે, તમે નસીબદાર છો. હિન્દુસ્તાનમાં પહેલી વાર આવી આપણે ટેકનોલોજી લાયા અને તમને એ મકાન મળી ગયું. सर आप जैसे यशवंत सिंह प्रधानमंत्री रहेंगे तो हम महिला सब बहुत सुखी रहेंगे. આ સગાવાળા કહેતા હશે અમે ઘર ના બનાવ્યું તો સારું થાત, આ મોદી સાહેબ મફતમાં આપી દે. सर नवरात्रि के पावन महीने में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर जो योजना का लाभ हमें मिला, जो सुख हमें मिला सब महिलाओं के लिए, ये योजना चालू रखे और आपको हम सब तरफ से ચાલો, તમને आशीर्वाद ખૂબ मिले. ખૂબ શુભકામનાઓ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમારું પરિવાર आपका ખૂબ बहुत-बहुत પ્રગતિ કરે, अभिनंदन સુખી करती રહે, हूँ, सर. માતાના આશીર્વાદ બન્યા રહે બધા ઉપર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપનો અને સૌ લાભાર્થીઓનો પણ. ઘર એ ફક્ત ચોરસ મીટરમાં મપાતું એકમ નથી, પરંતુ પરિવારના સ્નેહ, આનંદ અને સામાજિક મોભાનું કાયમી સરનામું છે. આજે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે આજે આવાસોના નિર્માણ થયા છે. ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી સંસ્કૃતિ કહે છે શક્તિ સ્વરૂપા જેને, આ સરકાર આપે છે સોનેરી અવસર તેને. ગુજરાતના સીએમ હતા ત્યારે અને હવે દેશના પીએમ છે ત્યારે પણ
આપણા સૌના આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મહિલાઓના વિકાસને હંમેશા અગ્રિમતા આપતા રહ્યા છે. શક્તિનું પ્રતીક છે માતાનો ગબ્બર, પહોંચી છે નારી ઉંબરથી અંબર. હોય ઉજ્જવલા કે પોતાના નામનું ઘર, શાળાથી સેના સુધીની કરી છે સફર. વિકાસના આ નવલા પથ પર प्रधानमंत्री श्री बन्या छे सौना राहबर. मां अंबा की पावन धरा को सुवर्ण शिखर से सजाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का भी स्वर्णिम विकास किया है. आइए जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आमंत्रित करते हैं अपने प्रेरक उद्बोधन के लिए. बोल मारी मां, बोल मारी मां, जय मां अंबे. आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का दिन है. इस शुभ अवसर पर आज मां अंबे के दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है. अंबाजी में माता के दर्शन करने के लिए एक प्रकार से मैं कहूं तो मां की गोद में ही हमारी जिंदगी बीती है, आप सबकी भी बीती है. और हम हमेशा अनुभव करते हैं जब भी यहां आते हैं एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के जाते हैं, नया विश्वास लेकर के जाते हैं. इस बार मैं ऐसे समय में आया हूं जब विकसित भारत का विराट संकल्प देश ने लिया है. 130 करोड़ देशवासियों ने लिया है कि 25 साल के अंदर अंदर हम हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे. मां अंबा के आशीर्वाद से हमें हमारे सभी संकल्पों की सिद्धि के लिए शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी. इस पावन अवसर पर मुझे बनासकांठा के साथ साथ गुजरात के अनेक जिलों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार देने का अवसर भी मिला है. आज जिन 45,000 से अधिक घरों का लोकार्पण और करीब लोकार्पण और शिलान्यास मिला दें तो 61,000, उन सभी लाभार्थियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं. उन बहनों को विशेष शुभकामनाएं जिन्हें आज अपना घर मिला है. इस बार आप सभी की दिवाली नए घर में मनेगी, अपने खुद के घर में मनेगी. આપણને આનંદ થાય કે ના થાય ભાઈઓ? પોતાના ઘરમાં દિવાળી ઉજવવાની વાત આવે અને જેણે જિંદગી ઝૂંપડામાં કાઢી હોય એને પોતાના પાકા ઘરમાં દિવાળી મનાવવાનું મન થાય. એની જિંદગીની આ મોટામાં મોટી દિવાળી હોય કે ના હોય? भाइयों और बहनों, जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है. लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारे संस्कारों में नारी सम्मान कितना रचा बसा है. दुनिया भर में जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जहां शक्ति की चर्चा होती है तो उनके साथ उनके पिता का नाम जुड़ता है. भाई आ फलाना भाई नो छोकरो आ बहादुर છે એવું કહે કે ના કહે?
ભારતની પરંપરા જુદી છે. भारत में हमारे यहां वीर पुरुषों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है. मैं उदाहरण देता हूं, आप भी सोचिए. अब देखिए, अर्जुन महान वीर पुरुष थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुनते हैं कि पांडु पुत्र अर्जुन, ऐसा नहीं बोलते लोग. लोग क्या कहते हैं? हम जब भी सुनते हैं तो उनका नाम पार्थ सुना. ये पार्थ क्या है? जो पृथा यानी कुंती के पुत्र है. अर्जुन की जब वर्णन आता है तो कौंते के पुत्र कुंती पुत्र के नाम से भी जाना जा गया है. इसी प्रकार से भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, उनका भी जब परिचय होता है तो देवकी नंदन कहते हैं. देवकी का पुत्र कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं. हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी को भी, हनुमान जी से बड़ा कोई वीर तो हमने अभी सुना नहीं है, लेकिन उनकी भी बात आती है तो कहते हैं अंजनी पुत्र हनुमान. यानी मां के नाम के साथ वीरों के नाम हमारे देश में, ये मां के महात्म्य को, नारी के महात्म्य को, स्त्री शक्ति के महात्म्य को हमारी संस्कार की पूंजी के समान हमें मिला हुआ है. इतना ही नहीं, ये हमारे संस्कार ही है कि हम अपने देश भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं. साथियों, ऐसी महान संस्कृति से जुड़े होने के बावजूद हमारे देश में ये भी हमने देखा कि घर की संपत्ति पर, घर के आर्थिक फैसलों पे ज्यादातर हक पिता का या बेटे का रहा. આપણને બધાને ખબર છે, ઘર હોય તો પુરુષના નામે, ગાડી હોય પુરુષના નામે, દુકાન હોય પુરુષના નામે, ખેતર હોય પુરુષના નામે, મહિલાના નામે કશું જ ના હોય, અને પતિ ગુજરી જાય છોકરાના નામે થઈ જાય. આપણે નક્કી કર્યું कि हम प्रधानमंत्री आवास जो देंगे, दीनदयाल आवास जो देंगे, उसमें माता का भी नाम होगा. इसलिए 2014 के बाद हमने फैसला लिया कि गरीबों को सरकार जो पक्के घर बनाकर दे रही है वो मां के नाम होगा या फिर मां और उसके पति के नाम पर होगा, मां या उसके बेटे के संयुक्त नाम पे होगा. अभी तक देश में गरीबों को 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर हमने गरीबों को दिए हैं. ये जो खुशी आप जिन लोगों के चेहरे पर देख रहे थे ना, इस देश के 3 करोड़ लोगों को घर मिला है और ऐसी ही खुशी उनके चेहरे पर आज नजर आ रही है. और जिनमें से अधिकतर घरों की मालकिन माताएं बहनें हैं. अपना घर होने की वजह से ये अब जो घर मिला है ना, आ घरनी આજની કિંમત કહીએ તો આ બધી બહેનો લખપતિ થઈ ગઈ છે. બરાબર સંભળાય છે ને છેલ્લે સુધી? मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि वो हर गरीब को पक्का घर देने के अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटी है. मैं भूपेंद्र भाई को धन्यवाद करता हूं. पिछले वर्ष ही 1.5 लाख घर गुजरात में पूरे हो चुके हैं. त्योहारों के इस मौसम में गरीब परिवारों की बहनों को अपनी रसोई चलाने में समस्या ना हो,
इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन की योजना भी आने वाले 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। मुश्किल समय में देश के 80 करोड़ से अधिक साथियों को राहत देने वाली स्कीम पर केंद्र सरकार करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 4 लाख करोड़ रुपए बीते 2 दशकों से माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम करने का बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है। बनासकांठा तो इसका एक बहुत बड़ा साक्षी रहा है। मुझे बहुत कष्ट होता था कि जहां माता अंबाजी और माता नड़ेश्वरी विराजमान है, वहां बेटियों की पढ़ाई को लेकर भी हम पीछे क्यों है। इसलिए मैंने जब मां नर्मदा से बनासकांठा के खेत खलिहान को लहलहाने का प्रण लिया था, तब आपसे मैंने मां सरस्वती को भी घर में स्थान देने का आग्रह किया था। मुझे याद है कि मैं बहनों से बार बार कहता था कि बेटियां नहीं पढ़ेगी तो मां सरस्वती घर में नहीं आएगी, और जहां सरस्वती न हो वहां लक्ष्मी जी कभी पांव तक नहीं रखती। मुझे खुशी है कि बनासकांठा की बहनों ने, आदिवासी परिवारों ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। आज मां नर्मदा का नीर यहां की तकदीर बदल रहा है, तो बेटियां भी बड़े शौक से स्कूल कॉलेज जा रही है। कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में भी बनासकांठा ने बहुत सहयोग दिया है। प्रसूति के दौरान माताओं को सुखड़ी वितरण का कार्यक्रम हो या फिर दूध दान करने का अभियान, बनासकांठा ने सफलता के साथ इसे आगे बढ़ाया है। भाइयों और बहनों, मातृ सेवा का जो संकल्प हमने यहां लिया, 2014 के बाद इसके लिए पूरे देश में काम चल रहा है। माताओं बहनों बेटियों के जीवन की हर पीड़ा, हर असुविधा, हर अड़चन को दूर करने के लिए उन्हें भारत की विकास यात्रा का सारथी बनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर देश की सेना में बेटियों की संपूर्ण भागीदारी तक बेटियों के लिए अवसरों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। टॉयलेट्स हो, गैस कनेक्शन हो, हर घर जल हो, जनधन खाते हो, मुद्रा योजना के तहत मिल रही बिना गारंटी के ऋण हो, केंद्र सरकार की हर बड़ी योजना के केंद्र में देश की मातृशक्ति है, नारी शक्ति है। साथियों, जब मां सुखी होती है तो परिवार सुखी होता है। जब परिवार सुखी होता है तो समाज सुखी होता है, और समाज सुखी होता है तो देश सुखी होता है। मेरे भाइयों, यही सही विकास है। इसी विकास के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये मंदिर के सामने जो इतना जाम लगता था, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? वहां शांति का वातावरण चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मार्बल लेकर जो ये बड़े बड़े ट्रक मंदिर के सामने से गुजरते हैं, इनके लिए अलग रास्ता होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आज नई रेल लाइन और बाईपास के रूप में हम सभी की एक कामना पूरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊंगा। आप सबको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज जिस तारंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड, महसाना, ये जो रेल लाइन का शिलान्यास हुआ है ना, देश जब गुलाम था, अंग्रेज जब राज करते थे, अंग्रेजों के जमाने में ये रेल लाइन बनाने का फैसला अंग्रेजों ने 1930 में किया था। यानी करीब करीब 100 साल पहले फाइलें पड़ी हैं। इसकी परिकल्पना
अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। यानी इस क्षेत्र में रेल लाइन की कितनी अहमियत थी, रेल लाइन की जरूरत कितनी थी, ये 100 साल पहचाना गया। लेकिन साथियों, शायद ये काम भी परमात्मा ने, मां अंबा ने मुझे ही करने के लिए कहा होगा। दुर्भाग्य से आजादी के बाद ये काम नहीं हुआ। आजादी के इतने दशकों तक ये फाइलें सड़ती रही। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो इसके पीछे लगा हुआ था, इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार कुछ और थी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज जब देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है, तब हमारी डबल इंजन की सरकार को इसे माता के चरणों में समर्पित करने का अवसर दे दिया है। इस रेल लाइन से और बाईपास से जाम और दूसरी समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही मार्बल उद्योग को भी बल मिलेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में है, जो आज चालू हो गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यहां का मार्बल, और हमारे किसान तो यहां आलू की खेती करने में मशहूर हो गए, अब सब्जियों की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, और दूध में भी पीछे नहीं है। ये सारी चीजें बहुत आसानी से उनके लिए रास्ता मिल जाएगा, आसानी से पहुंचाना सरल हो जाएगा। किसानों को विशेष लाभ इसलिए भी होगा क्योंकि आने वाले समय में विशेष किसान रेल भी यहां से चल सकती है। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा लाभ यहां के पर्यटन उद्योगों को होने वाला है। यहां तो अंबाजी मां स्वयं विराजमान है, और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने यह 51 शक्तिपीठों का भी निर्माण किया है। मां अंबा स्वयं 51 शक्तिपीठों में से एक है, और हमने सभी दुनिया भर में जहां जहां मां अंबा का स्थान है, उसी रिप्लिका यहां बनाई है। यानी एक प्रकार से ये 51 तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा अंबाजी में आने से हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है अभी भी लोग इतनी तेजी से आते हैं कि मां अंबा के दर्शन किए फिर भाग जाते हैं। मैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता हूं कि जो अंबाजी आएगा उसको 2-3 दिन यहां रहना पड़े, इतनी सारी चीजें मुझे खड़ी कर देनी है ताकि यहां पूरा रोजी रोटी बढ़ जाए। देखिए पास में गब्बर, अब हम गब्बर को बदल रहे हैं, आपको नजर आता होगा। किसी ने सोचा होगा क्या? आज गब्बर तीर्थ के विकास के लिए मैं गुजरात की सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूं। अब अजीतनाथ जैन मंदिर, तारंगा हिल, उसके दर्शन भी आसान हो जाएंगे। जैसे पालीताना का महत्व बढ़ गया है, वैसे तारंगा हिल का भी महत्व बढ़ेगा। ये आप लिख करके रखिए। ट्रेन चलेगी तो ज्यादा तीर्थ यात्री यहां आएंगे। होटल, गेस्ट हाउस, दुकान, ढाबे वालों की, यानी उनकी आय बढ़ेगी। छोटे छोटे दुकानदारों को काम मिलेगा। युवाओं के लिए गाइड से लेकर के टैक्सी सेवाओं तक नए मौके मिलेंगे। और धरोई डैम से लेकर के अंबाजी तक पूरा बेल्ट मुझे विकसित करना है। जैसे आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर के देखते हैं, वैसा ही मैं यहां करना चाहता हूं। पूरा एक क्षेत्र, धरोई डैम में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर संभावना है, अब उन्हें भी और विस्तार मिलेगा। भाइयों और बहनों, एक तरफ आस्था और उद्योगों का ये गलियारा है, और दूसरी तरफ हमारा बॉर्डर है, जहां हमारे वीर जवान राष्ट्र रक्षा में तैनात रहते हैं। हाल ही में सरकार ने सुईगाम तालुका में सीमा दर्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। प्रयास ये है देश भर से लोग यहां आकर के सीधे हमारे बीएसएफ के जवानों के अनुभवों को देखे, जान सके। ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय एकता के पंच प्राणों को भी ताकत देने वाला है, और यहां पर्यटन से जुड़े नए रोजगारों का भी सृजन करेगा।
मीठा, थराद, डीसा सड़क के चौड़ी होने से भी इस परियोजना को बल मिलेगा। डीसा में एयरफोर्स स्टेशन में रनवे और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से हमारी वायुसेना की ताकत भी इस क्षेत्र में बढ़ने वाली है। रणनीतिक लिहाज से ये एयरफोर्स स्टेशन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब इतना बड़ा स्टेशन यहां बन रहा है तब आसपास व्यापार कारोबार भी बढ़ेगा। यहां दूध, फल, सब्जी से लेकर अनेक प्रकार की जरूरतें पैदा होगी, जिससे यहां के किसानों, पशुपालकों सभी को लाभ तय है। भाइयों और बहनों, बीते 2 दशकों के निरंतर प्रयासों से बनासकांठा की तस्वीर बदल चुकी है। नर्मदा के नीर, सुजलाम सुफलाम और ड्रिप इरिगेशन ने स्थिति को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें बहनों की भूमिका, इस भूमिका में बहनों का रोल बहुत अग्रणी रहा है। बनासकांठा में कभी अनार की खेती होगी, अंगूर की खेती होगी, आलू और टमाटर इतने बड़े पैमाने पैदा होंगे, कुछ साल पहले तक ये कोई सोच भी नहीं सकता था। आज जो परियोजनाएं शुरू हुई है वो किसानों, युवाओं, महिलाओं सभी का जीवन बदलने का काम करेगी। एक बार फिर मां के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई। आपका भरपूर आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। અને પહેલા તો મારે તમારી માફી માંગવી પડે કે મને આવતા મોડું થયું, મને અંદાજ નહોતો કે હવે મેં કહું અહીંયા સીધા નીકળીશું પહોંચી જઈશું, પણ રસ્તામાં એટલી મોટી સંખ્યામાં બધા ગ્રામજનો ઉભા હતા તો સ્વાભાવિક રીતે મારું મન થતું હતું એમને પગે લાગવું, અને એમ કરતા કરતા પહોંચવામાં મોડો પડ્યો, એટલે આપ બધાએ રાહ વધારે જોવી પડી, એ બદલ ક્ષમા માંગુ છું। પણ આપણા બનાસકાંઠાના ભાઈઓ અને હવે તો બાજુમાં આપણું ખેડબ્રહ્મા પણ, અમારો સાબરકાંઠાનો પટ્ટો પણ આને જ પડે। આપણે બધાએ વિકાસ અને પ્રગતિના નવા શિખરો સર કરવા છે, અને આ 25 વર્ષ આપણી પાસે મોટો મોકો છે ભાઈઓ। આજે દુનિયામાં લોકોનું ભારત માટેનું આકર્ષણ વધ્યું છે। હવે આ મોકો જતો કરાય, આ તક જતી કરાય, મહેનત કરવી પડે કે ના કરવી પડે, વિકાસના કામોમાં જોર આપવું પડે કે ના આપવું પડે, બધાએ સાથે મળીને આગળ વધવું જોઈએ કે ના વધવું જોઈએ, આ કરીએ તો જ પ્રગતિ થાય ભાઈઓ। અને એ પ્રગતિ કરવા માટે આપે હંમેશા સાથ અને સહકાર આપ્યો છે, એ જ મારી તાકાત છે, એ જ મારી મૂડી છે, એ જ તમારા બધાના આશીર્વાદ અમને નવું નવું કામ કરવાની પ્રેરણા આપે છે। એટલે આ માતાના ધામમાંથી આપ સૌનો, સૌ ગુજરાતવાસીઓનો હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। તો અંબાજીમાં 6,909 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું વડાપ્રધાનના હસ્તે લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું, અને વડાપ્રધાને આજે અંબાજીમાં પહોંચીને લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું, અને સભાસ્થળ ખાતેથી તેમણે જનસભાને પણ સંબોધી હતી। કેટલાક પીએમ આવાસના લાભાર્થીઓને પણ આજે મકાન પણ ફાળવવામાં આવ્યા હતા। અંબાજીના ચીખલામાં પીએમ મોદીની આ જનસભા હતી, અને તેમણે પોતાની આગવા અંદાજમાં ત્યાં લોકોનું અભિવાદન ઝીલી અને સંબોધન કર્યું હતું। ઉલ્લેખનીય છે કે 6,909 કરોડના જે વિકાસ કાર્યોની જે વાત છે, કેટલીક એવી યોજનાઓ હતી કે જે અંબાજીમાં વર્ષોથી ત્યાંના સ્થાનિકોની માંગ હતી, અને જે યોજના આજે પરિપૂર્ણ કરવામાં આવી છે।